وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنی خیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ یہ کوئی رات کے 3-3:30 بجے کا وقت ہوگا۔ میں گلی میں سے قدموں کی آواز پیدا کیے بغیر گزر گیا۔ آگے کچی ڈھلان تھی، میں بائیں جانب ہو گیا۔ ایک کتا مجھے دیکھ کر زور زور سے بھونکنے لگا۔ میں چلتا گیا، ایک جوہڑ آیا، وہاں ایک خالی گڈھا کھڑا تھا۔ گاؤں کے چند ایک مکان تھے، ان پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سامنے مجھے سڑک کی روشنی نظر آئی، ضرور یہ جی ٹی روڈ ہی ہوگی۔ میں نے سوچا ریلوے لائن سے میں بائیں جانب نکل آیا ہوں، اب یہی بہتر ہے کہ جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ چلتا جاؤں اور دن نکلنے تک امرتسر شہر سے جتنی دور نکل سکتا ہوں نکل جاؤں۔ یہاں میری غلطی یہ تھی کہ جی ٹی روڈ ایک ایسی سڑک تھی کہ جہاں پر تھوڑی بہت ساری رات ٹریفک جاری رہتی ہے اور شہر کی حد ختم ہونے تک اس سڑک کی دونوں جانب آدھ فرلانگ کے فاصلے پر کھمبوں پر بجلی کے بلب جلتے رہتے ہیں۔ مجھے ریلوے لائن کی طرف ہی جانا تھا۔ میں اس خیال سے اس طرف آ گیا تھا کہ ریلوے لائن وہاں سے کافی دور تھی اور مجھے ڈر تھا کہ راستہ ویران ہے، کتے ہوں گے، مجھے دیکھ کر بھونکیں گے اور میرے پکڑے جانے کا ڈر تھا۔ میں جی ٹی روڈ پر چڑھنے کی بجائے اس کی دوسری جانب کھیتوں کی مینڈ پر چلتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اتنے سالوں کے بعد بھی امرتسر کی جی ٹی روڈ ویسی کی ویسی تھی۔ میں نے ایک جگہ رک کر سڑک کے پیچھے نگاہ دوڑائی تو مجھے عقب میں دور امرتسر شہر کی روشنیاں نظر آئیں۔ میں ابھی امرتسر کی حدود میں ہی تھا۔ میں تیز تیز چلنے لگا۔ فصل والے کھیت ختم ہو جاتے تھے تو خالی کھیت آ جاتے۔ آسمان پر صبح کاذب کی نیلی نیلی جھلکیاں نمودار ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ میں نے چلنے کی رفتار اور تیز کر دی۔ آگے میری دائیں جانب ایک آبادی آ گئی، یہاں کہیں کہیں کھمبوں پر بجلی کے بلب جل رہے تھے۔ میں ان سے دور رہ کر دوسری طرف ہو گیا۔ ایک کھیت میں کسان ہل چلا رہے تھے، مجھے اس کا سایہ سا ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ ہل چلاتے ہوئے جانوروں کو چلتا رکھنے کے لیے جو آوازیں نکال رہا تھا، صرف اس کی آواز آ رہی تھی۔ ایک خشک کھائی آ گئی۔ آسمان پر صبح کاذب کی نیلی روشنی کی وجہ سے مجھے چیزیں دکھائی دینے لگی تھیں۔ یہ کھائی خالی اور خشک تھی۔ میں اس میں اتر گیا اور سامنے والی چڑھائی چڑھ کر کھائی کی دوسری طرف آ گیا۔ اس وقت جی ٹی روڈ میری ایک جانب کچھ فاصلے پر ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ جی ٹی روڈ کی پہچان ٹالی کے درخت تھے جو اس کی دونوں جانب قطار میں اگے ہوئے تھے۔ کہیں قریب ہی کوئی مندر ہوگا۔ ادھر سے پوجا پاٹ کرنے اور آرتی اتارتے وقت چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، ان کی دبی دبی آواز سنائی دی۔ اس وقت مجھے شدت سے محسوس ہوا کہ میں ایک غیر مسلم ملک میں ہوں، ہندوؤں سکھوں کے ملک میں ہوں، کیونکہ اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ اگر میں کسی مسلمان ملک میں ہوتا تو اس وقت مسجدوں سے صبح کی اذان کی آوازیں آ رہی ہوتی۔ ان علاقوں میں بلکہ سارے مشرقی پنجاب میں ہندو سکھوں نے سب مسجدوں کو شہید کر دیا ہوا تھا۔ جو مسجدیں بچ گئی تھیں انہیں استبل بنا دیا گیا تھا یا ہندو سکھ شرنارتھی وہاں آ کر رہنے لگے تھے۔ میں اس قسم کے خیالات سوچتا چلا جا رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے پنجابی میں آواز دی، کون ہے؟ رک جاؤ۔ آواز کا سننا تھا کہ میں نے دوڑ لگا دی۔ مجھے اپنے پیچھے بھی کسی کے دوڑتے قدموں کی آواز آئی۔ ابھی سورج نکلنے میں دیر تھی اور ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں ایک اونچی فصل والے کھیت میں گھس گیا۔ فصل شاید کماد کی تھی۔ میرے دوڑنے سے ٹہنوں کے ٹوٹنے اور ادھر ادھر ہونے کی آواز پیدا ہوئی۔ مجھے اپنے پیچھے بھی ایسی ہی آوازیں آنے لگیں۔ کوئی میرے پیچھے بھاگا چلا رہا تھا۔ یقیناً یہ کوئی پولیس کا سپاہی تھا۔ اگر پولیس کا آدمی نہیں تھا تو پولیس کا مخبر ہوگا۔ اس سارے علاقے میں پولیس نے لوگوں کو اور رات کو پہرا دینے والوں کو میرے بارے میں ہوشیار کر دیا تھا۔ ضرور یہ کوئی چوکیدار ہوگا جس نے مجھے للکارا تھا اور میرے بھاگنے پر میرے پیچھے دوڑ پڑا تھا۔ کھیت ختم ہوا تو سامنے درختوں کا جھنڈ تھا۔ میں ان درختوں میں گھس گیا۔ میں بے تحاشا دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ دوڑنے میں وہ شخص میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تیز دوڑنا اور زیادہ سے زیادہ دیر تک دوڑنا میری کمانڈو ٹریننگ کا اہم حصہ تھا، مگر میرے آگے درختوں کی اور جھاڑیوں کی رکاوٹیں آ رہی تھیں۔ میرے پیچھے دوڑنے والے نے مجھے گالی دے کر بلند آواز میں کہا، بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ آگے پولیس کھڑی ہے۔ پولیس کا نام لے کر شاید اس نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی تھی، لیکن پولیس کے نام سے مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میرے پیچھے بھاگنے والے کو یقین ہے کہ میں وہی پاکستانی جاسوس ہوں جو امرتسر جیل سے بھاگا ہوا ہے اور جس کو پولیس تلاش کر رہی ہے۔ میں اونچے اونچے سرکنڈوں اور ٹبوں کے درمیان بھاگتا جا رہا تھا۔ آسمان پر پھیکی پھیکی صبح کی روشنی ہونے لگی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں آخر کب تک دوڑتا رہوں گا؟ میرے پیچھے ایک ہی آدمی لگا ہوا ہے، میں اسے قابو کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں گھوم کر سرکنڈوں کی ایک اونچی جھاڑی کے پیچھے ہو کر گھات لگا کر کھڑا ہو گیا۔ جو آدمی میرے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا تھا وہ تھک گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ دوڑ رہا تھا۔ اس نے اونچی آواز میں کسی کو آواز دے کر کہا، اوئے ادھر آؤ، اوئے پاکستانی جاسوس کو میں نے پکڑ لیا ہے۔ جیسے ہی وہ سرکنڈوں کے قریب سے گزر کر ایک دو قدم آگے گیا، میں نے پیچھے سے اس پر اس طرح چھلانگ لگائی کہ میرے سیدھے بازو نے اس کی گردن کو اپنے فولادی شکنجے میں لے کر اپنے ساتھ ہی نیچے گرا دیا۔
मैंने उस आदमी के नीचे गिरते उसकी गर्दन को सिर्फ एक झटका दिया। उसका सांस बंद हो चुका था। मैंने उसकी लाश को वहीं छोड़ा और उठकर सामने की जानिब दौड़ पड़ा। जिस तरफ आबादी थी मैं उस इलाके को छोड़कर जीटी रोड वाले टाली के दरख्तों में आ गया। अब मैं चाहता था कि मुझे आगे जालिंधर की तरफ जाती कोई ऐसी सवारी मिल जाए जो मुझे इस खतरनाक इलाके से निकाल दे। ऐसी सवारी कोई ट्रक ही हो सकता था। अपने कमांडो मिशन की सरगर्मियों के दौरान मैंने अक्सर दो शहरों के दरमियान रातों को चलने माल बरदार ट्रकों पर लिफ्ट लेकर काफी सफर किया था। मुझे ये एहसास भी था कि अमृतसर जेल से मेरे फरार की इत्तला इर्द गिर्द के शहरों और जिले के सारे थानों को पुलिस ने कर दी होगी और बहुत मुमकिन है कि रास्ते में पुलिस ने नाकाबंदी भी लगा रखी हो, पुलिस चेकिंग भी कर रही हो। मेरी तस्वीर पुलिस को मिल गई होगी। हर सिपाही के पास मेरी तस्वीर नहीं हो सकती, लेकिन पुलिस मुझे मशकूक समझकर पकड़ जरूर सकती थी। मैं टाली के दरख्तों के दूसरी तरफ से होकर जीटी रोड पर चल रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था दिन की रोशनी सफेद होती जा रही थी। मेरे पास एक पैसा तक नहीं था। जितनी इंडियन करेंसी थी वो सारी अमृतसर जेल के अमले ने अपने पास रख ली थी। मेरा हुलिया ऐसा था कि अपने लिबास से मैं या तो कोई मजदूर लग रहा था या मशकूक। दूर मुझे सड़क के किनारे कच्चे पर रुकी हुई एक मोटर कार नजर पड़ी। उसका ड्राइवर उसका टायर बदल रहा था। मेरे करीब जाने तक उसने टायर बदल लिया था और अगली सीट खोल कर बैठने ही वाला था कि मैं दौड़कर उसके पास गया, प्रणाम किया और कहा, महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी, मुझे आगे तक ले जाएं। मेरी माता स्वर्गवास हो गई हैं। मेरे पास गांव जाने के लिए पैसे नहीं हैं। ड्राइवर बूढ़ा आदमी था और हिंदू था। उसने मुझे सर से पांव तक देखा और कहा, कहाँ जाओगे? मैं तो अंबाले जा रहा हूँ। मैंने कहा, महाराज मुझे जालिंधर के करीब मियाँ वाले गाँव में जाना है। मैंने इस ख्याल से यूं ही एक फर्जी गाँव का फर्जी नाम बोल दिया था कि पंजाब में बेशुमार छोटे छोटे गाँव हैं और इन गाँव के नाम इसी किस्म के हुआ करते थे। उसने कहा, बैठ जाओ अंदर, सवेरे सवेरे क्या काम लेकर आ गए हो, इनकार भी नहीं कर सकता। वो गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर ले आया और गाड़ी खाली सड़क पर चल पड़ी। ये पुरानी सी मोटर कार थी, खुदा जाने किस मॉडल की थी और उसका क्या नाम था। फूली हुई नस्वारी रंग की गाड़ी थी। पिछली सीट काफी नीचे बैठी हुई थी। मैं उस पर ऐसे बैठ गया कि पीछे से किसी को नजर न आ सकूं। ड्राइवर ने पूछा, तुम कहाँ काम करते हो कि तुम्हारी माता स्वर्गवास हो गई हैं और उसने तुम्हें गाँव जाने का किराया भी नहीं दिया? सवाल उसने बिल्कुल ठीक किया था। मैं जल्दी से सीधा होकर बैठ गया क्योंकि ड्राइवर मुझे सामने लगे आईने में से देख रहा था। मैंने कहा, महाराज एक दुकान पर खैरात का काम सीखता हूँ। लाला जी दिल्ली गए हुए थे। माता जी के स्वर्गवास होने की खबर मिली तो किसी से पैसे नहीं मांग सकता था। 10-15 रोज ही हुए हैं यहाँ काम करते। अकेला दुकान की छत पर सोता हूँ। उसके बाद ड्राइवर ने मुझसे कोई सवाल न किया। मैंने सीट पर खिसकते खिसकते अपना सर नीचे कर लिया ताकि पिछले शीशे से मैं नजर न आ सकूं। गाड़ी एक खास रफ्तार से भागी जा रही थी। सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा नहीं थी। सूरज निकल आया था। धूप चारों तरफ फैल गई थी। पीछे से एक ट्रक आ गया। ड्राइवर ने गाड़ी एक तरफ कर ली। ट्रक गुजर गया। ड्राइवर ने गाली देकर कहा, इतनी तेज ट्रक चलाते हैं, एक्सीडेंट क्यों ना होंगे? मैं बड़ा चौकस होकर सामने की तरफ सड़क पर देख रहा था। दूर तक सड़क खाली थी। कोई 15-20 मिनट के बाद कोई कस्बा आया जिसके मकान और दुकानें जीटी रोड के दोनों जानिब थीं। खतरा था कि यहाँ पुलिस की नाकाबंदी न हो, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी। गाड़ी कस्बे से गुजर गई। अमृतसर से जालिंधर 40 मील दूर होगा। पौन घंटे के बाद जालिंधर के आसपास का इलाका शुरू हो गया। ये इलाका मेरा जाना पहचाना था। ड्राइवर ने सामने वाले आईने में से मुझे घूरते हुए पूछा, ओए तुम्हारा गांव कहाँ है? आगे तो जालिंधर आ रहा है। मैं यूं ही मोटर की खिड़की में से बाहर इधर उधर देखने लगा। मेरे हिसाब से मुझे वहीं किसी जगह उतर जाना चाहिए था क्योंकि जालिंधर बड़ा शहर था और बड़ा पुलिस स्टेशन था। वहाँ जरूर पुलिस मेरी तलाश में गाड़ियों वगैरह की चेकिंग कर रही होगी। मैंने कहा, बस महाराज यहीं रोक दें, यहाँ से मेरा गाँव ज्यादा दूर नहीं। उसने गाड़ी कच्चे में रोक दी। मैंने नीचे उतरकर उसका हिंदी में शुक्रिया अदा किया। उसने कोई जवाब न दिया और मोटर आगे चल दी। मैं सड़क से उतरकर खेत में दाखिल हो गया। मैं एक कौस की शक्ल में जालिंधर शहर के मगरिब की तरफ से होकर एक लंबा चक्कर लगाकर बहुत आगे जाकर दोबारा जीटी रोड पर निकल आना चाहता था। अभी तक मैंने यही फैसला किया था कि इसी तरह ट्रकों और मोटर गाड़ियों में लिफ्ट लेकर दिल्ली की जानिब जितना आगे निकल सकता हूँ निकल जाऊं। सोचने को तो मैंने सोच लिया और चलने को चल भी पड़ा, मगर जालिंधर शहर आजादी मिलने के इतने साल बाद बहुत फैल गया था। नई नई कॉलोनियां बन गई थी। नए नए कारखाने लग गए थे। आबादी बहुत हो गई थी। खेतों से निकलकर मैंने सामने की जानिब देखा तो आबादियां ही आबादियां थीं। मैं अपने अंदाजे के मुताबिक जरा एक जानिब गया। मैं निस्फ दायरे की शक्ल में जालिंधर शहर की आबादियों के पीछे से होता हुआ आगे वापस जीटी रोड पर पहुंचा। लेकिन आगे इतनी आबादी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ से रुख बदलूं। दिन पूरी तरह निकल आया था। जगह जगह लोग नजर आ रहे थे। खेतों में ट्रैक्टर भी चल रहे थे। मैं एक जगह से गुजरा जहां दरख्तों में अखाड़ा बना हुआ था। नौजवान हिंदू सिख वहां जोर कर रहे थे।
पास ही रहट चल रहा था। उसका पानी एक होज में से होकर नाली की शक्ल में एक तरफ से गुजर रहा था। मुझे प्यास लगी। मैंने बैठकर हाथ मुंह धोया और आहिस्ता आहिस्ता पानी पीने लगा। मेरी तरफ किसी ने ध्यान न दिया। 2-3 हिंदू अखाड़े के किनारे बैठे बदन पर तेल की मालिश करते हुए ऊंची ऊंची आवाज में एक दूसरे से हंस हंस कर मजाक की बातें कर रहे थे। एक हिंदू कहने लगा, सोने आओ खबरदार होकर, एक पाकिस्तानी जासूस अमृतसर जेल से फरार हुआ है। मेरे कान खड़े हो गए। दूसरे हिंदू ने हंसकर कहा, तुम बड़ी अफवाहें उड़ाते हो। पहले वाला हिंदू बोला, मैंने प्रताप अखबार में खबर पढ़ी है, तुम तो अनपढ़ हो, पढ़े लिखे होते तो ये जरूर पढ़ते। इस दौरान जरा परे बैठे हुए एक हिंदू ने कहा, तारा ठीक कहता है, मैंने भी प्रताप में ये खबर पढ़ी है, एक पाकिस्तानी जासूस जेल तोड़कर भाग गया है। अखबार ने लिखा है कि वो जालिंधर अंबाले की तरफ गया है। अब मेरा वहां रुकना ठीक नहीं था। मैं बड़े इत्मीनान से उठकर वहां से आगे चल दिया। अखबार के मुताबिक पुलिस मेरे पीछे पीछे जालिंधर की तरफ आ रही थी और इसके अलावा अमृतसर पुलिस की रिपोर्ट पर जालिंधर की पुलिस भी होशियार हो गई होगी। खतरा मेरे करीब आ गया था। जालिंधर शहर से मैं ज्यादा वाकिफ नहीं था। मैं अंदाजे से ही निस्फ दायरे बनाने की कोशिश करते हुए जीटी रोड पर बहुत आगे निकल जाना चाहता था, मगर आबादियां और नई कॉलोनियां जगह जगह बनी हुई थीं। सड़कों पर रिक्शा, मोटरें और स्कूटर चल रहे थे। लोग दफ्तरों और कॉलेजों की तरफ जा रहे थे। जालिंधर शहर के सिर्फ इस इलाके को मैं पहचानता था जिधर मशरकी पंजाब के डीआईजी पुलिस की तवाइफ बीवी हरपाल कौर की कोठी थी, जहां वो अपनी तवाइफ मां के साथ रहती थी और जहां मैं भी 2-3 रातें गुजार चुका था। हरपाल कौर का ख्याल आते ही मैंने सोचा कि क्यों ना उसके यहाँ जाकर कुछ दिन के लिए छुप जाऊं। जब हालात जरा मामूल पर आ जाएं तो वहां से दिल्ली रवाना हो जाऊं। मगर मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि वो इलाका यहाँ से किस तरफ है जहाँ हरपाल कौर की कोठी है। ये सिख तवाइफ औरत मुझसे बड़ी मोहब्बत करने लगी थी। मैंने उसे अपना नाम जगदेश बताया था और अपने आप को जालिंधर का रहने वाला और कॉलेज स्टूडेंट जाहिर किया था। मैं सोच भी रहा था और चल भी रहा था। मैं कॉलोनी के क्वार्टरों के दरमियान से गुजर गया। आगे फिर एक कॉलोनी आ गई। वहां से अंदाजा लगाकर जीटी रोड की तरफ हो गया। मैं एक छोटे से वीरान मैदान में से गुजर रहा था जहां कूड़े करकट और लोहे के स्क्रैप के ढेर जगह जगह पड़े थे। उनको उबूर करके छोटी सी सड़क पर आया था। एक जानिब 4 दीवारी में सब्ज रंग का परचम लहराता नजर आया। ये झंडा एक नीम शिकस्ता से गुंबद पर लगा हुआ था। मैं फौरन समझ गया कि ये कोई मजार है। मैं दीवार के साथ साथ चलता मजार के दरवाजे के पास आ गया। मैंने अंदर झांक कर देखा, एक छोटी सी मस्जिद का सहन था। दूसरी तरफ गुंबद वाले मजार का छोटा सा दरवाजा था जिसके ऊपर छोटी छोटी सब्ज झंडियां लगी थी। एक आदमी दरवाजे के पास सफ पर बैठा था। मस्जिद के सहन में भी एक आदमी सफें तह कर रहा था। ये किसी मुसलमान बुजुर्ग का मजार था। इतना मुझे मालूम था कि जालिंधर में तकसीम के वक्त एक भी मुसलमान बाकी नहीं बचा था। कुछ अरसे के बाद वहां रियासत मालीर कोटला के पंजाबी मुसलमानों ने आकर कारोबार शुरू कर दिया था, क्योंकि रियासत मालीर कोटला के मुसलमानों को सिखों ने हाथ भी नहीं लगाया था। इसकी वजह यह नहीं थी कि रियासत का सरबराह मुसलमान था, बल्कि असल वजह यह थी कि औरंगजेब के जमाने में जब सिखों के एक गुरु के बच्चों पर एक रिवायत के मुताबिक मुगल दरबार की तरफ से जुल्म सितम हुआ तो सिर्फ रियासत मालीर कोटला के नवाब ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। उस वक्त सिखों के गुरु ने पंथ को हुक्म सादर कर दिया था कि आज से रियासत मालीर कोटला के मुसलमान हमारे दोस्त हैं। चुनाचे जब पाकिस्तान बना और मशरकी पंजाब में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो गया तो रियासत मालीर कोटला के मुसलमान महफूज रहे थे। इधर उधर के देहात से पंजाबी मुसलमान यहाँ आ गए थे। ये बात मुझे मालीर कोटला के मुसलमान नहीं बताई थी। अब खुदा जाने इसमें कहाँ तक सच्चाई है। मशरकी पंजाब में जो मुसलमान बुजुर्गों के मजार थे, मुसलमानों के जाने के बाद सिखों ने उसे संभाल लिया था, क्योंकि अक्सर इन मजारों पर हिंदू सिख मर्द औरतें भी मन्नतें मानने आया करते थे। मेरे ख्याल में ये मजार भी ऐसा ही था, मगर जहाँ जो मुतवल्ली बाहर बैठे हुए थे उसकी शरई दाढ़ी थी, वो मुसलमान मालूम होता था। मैंने अपने जहन में एक लम्हा सोचकर उसके पास जाकर सलाम किया और बुजुर्ग के मजार पर फातिहा पढ़ने के बाद वहीं एक तरफ होकर बैठ गया। मतवल्ली ने मुझसे पूछा, तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, कहाँ से आए हो, पंजाबी हो? मैंने जवाब दिया, जी मैं मालीर कोटला से जालिंधर एक अदालत में पेशी भुगतने आया हूँ। मेरे चचा ने मुझ पर दुकान से बेदखल कराने का केस दायर कर रखा है। सोचा इन बुजुर्ग के मजार पर आकर दुआ मांग लूं। मतवल्ली ने मेरी तरफ उसके बाद कोई खास तवज्जो न दी और जो संदूकची उसने अपने सामने रखी हुई थी उसमें से पुराने तह किए हुए कागज निकाल निकाल कर देखता रहा। मैंने असल मकसद की तरफ आते हुए कहा, मेरा यहाँ कोई जानने वाला नहीं, कोई सिफारिश करने वाला भी नहीं। चचा ने मुझ पर झूठा मुकदमा बनवाया हुआ है। हमारे मोहल्ले के एक बाबू ने कहा था कि जालिंधर जाकर डीआईजी पुलिस के पास जाकर मेरा नाम लेना, वो तुम्हारी मदद करेगा। मैं उनके दफ्तर गया तो वो वहां नहीं थे। मुझे उनके घर का पता मालूम नहीं। सोचता हूँ डीआईजी साहब के घर जाकर उनसे मिलूं, शायद वो मेरी मदद करें। मुतवल्ली ने कहा, डीआईजी तो सिख सरदार हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं।
तुम उनसे जरूर मिलो, वो अक्सर बाहर ही रहते हैं। यहाँ उनकी बीवी की कोठी है, मैं तुम्हें उसका पता बताता हूँ, जाकर देख लो, शायद वो तुम्हारी मदद करे। उसने मुझे हरपाल कौर की कोठी का पता बता दिया। मैंने मुतवल्ली से ये कहकर थोड़े पैसे उधार ले लिए कि मेरी जेब कट गई थी। मालिर कोटला जाते ही मैं ये पैसे मनी ऑर्डर करवा दूंगा। मैं सलाम करके उठा और सड़क पर एक तरफ चलने लगा। दिल में सोच रहा था कि मेरा हरपाल कौर के यहाँ जाना मुनासिब रहेगा या नहीं, कहीं किसी और मुसीबत में न फंस जाऊं। पुलिस मुझे चारों तरफ से घेरे में ले रही थी। इस बात का खतरा था कि मैं इसी तरह पैदल चलता रहा तो जीटी रोड पर या कहीं न कहीं जरूर पकड़ लिया जाऊंगा। मैंने एक खाली मोटर रिक्शा लिया और हरपाल कौर की कोठी जिस इलाके में थी उस तरफ रवाना हो गया। कोठी के गेट से काफी पीछे मैंने रिक्शा छोड़ दिया। कोठी को मैंने पहचान लिया था, पोर्च और लॉन खाली था। हरपाल कौर की गाड़ी वहां नहीं थी। चौकीदार एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। उसने मुझे नहीं पहचाना। मेरा हुलिया बहुत शिकस्ता हो रहा था, कपड़े मैले कुचैले थे। मैंने उससे पूछा कि श्रीमती हरपाल कौर जी घर पर हैं, मुझे उनसे मिलना है, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। तो वो मेरी शक्ल सूरत और कपड़ों को देखकर बोला, तुम कहाँ से आए हो? मैंने कुछ ऐसी बातें की जिससे उसे यकीन हो गया कि मैं श्रीमती जी का कोई करीबी रिश्तेदार हूँ जो उनसे मदद लेने आया है। कहने लगा, इधर बैठ जाओ, श्रीमती जी अपनी माता की खबर लेने अस्पताल गई हैं, अभी आ जाएंगी। मालूम हुआ कि हरपाल कौर की माँ अस्पताल में दाखिल है। मुझे उसकी माँ से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं कोठी के बागीचे में क्यारी के पास बैठ गया। कोई 15-20 मिनट के बाद हरपाल कौर की गाड़ी कोठी में दाखिल हुई। वो कार की पिछली सीट पर बैठी थी। उसका पुराना सिख ड्राइवर चला रहा था जिसकी शक्ल से मैं वाकिफ था। हरपाल कौर ने सरसरी निगाह से मुझे देखा मगर न पहचाना। मैं उठ के पोर्च की तरफ गया। गाड़ी पोर्च में खड़ी हो गई थी। हरपाल कौर गाड़ी से बाहर निकल रही थी। उसने मुझे देखा तो देखती ही रह गई। मैंने हाथ जोड़कर सत श्री अकाल कहा तो वो हैरान होकर बोली, जगदीश तुम? मैंने कहा, जी श्रीमती, मैं एक जगदीश ही हूँ, अंदर आ जाओ। मैं हरपाल कौर के साथ ड्राइंग रूम में आ गया। हरपाल कौर वैसी की वैसी ही थी। उसके हुस्न में कोई फर्क नहीं आया था। मैंने उसे एक फर्जी कहानी घड़कर सुना दी कि मेरे पिता की वफात के बाद हमारे हालात खराब हो गए। हमने अपना जालिंधर वाला मकान बेच दिया और बंबई चले गए। वहां मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया। कारोबार में नुकसान उठाना पड़ा, जो पास था सब खत्म हो गया। मैंने बंबई में नौकरी की तलाश शुरू कर दी। कुछ अरसा इधर उधर छोटी मोटी नौकरियां करता रहा मगर हालात न सुधर सके। तंग आकर वापस जालिंधर आ गया हूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि रेल का टिकट खरीद सकता। बगैर टिकट के आया हूँ। हरपाल कौर मेरी मन घड़त कहानी से बहुत मुतासिर हुई। कहने लगी, तुम्हारी ये हालत देखकर मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ है जगदीश, पर तुम फिक्र न करो, मैं अपने पति से कहकर तुम्हें नौकरी दिला दूंगी। जाओ तुम पहले नहा धो लो। मैंने उसकी माँ के बारे में पूछा कि अब उसकी हालत कैसी है। मुझे चौकीदार ने बताया है कि माताजी बीमार होकर अस्पताल में पड़ी हैं। हरपाल कौर ने ठंडी सांस भरकर कहा, बस वाहे गुरु अपनी कृपा करके माताजी को ठीक कर दें। तुम जाओ नहाओ। मैं गुस्ल खाने में जाकर खूब मल मल कर नहाया। हरपाल कौर ने मुझे खुदा जाने किसका इस्त्री किया हुआ खद्दर का कुर्ता पाजामा दिया। मैंने पहन लिया। नौकरानी चाय के साथ बिस्किट वगैरह लेकर आ गई। हरपाल ने पूछा, तुम खाना खाओगे या सिर्फ चाय पियोगे? मैंने कहा, सिर्फ चाय पीऊंगा। हम चाय पीने और बातें करने लगे। हरपाल कौर मेरे सामने सोफे पर बैठी थी। कहने लगी, मेरा खावंद सरदार यहाँ नहीं है, अंबाले में है। मैं उससे फोन पर तुम्हारी नौकरी के बारे में बात करूंगी, बल्कि मैं उससे तुम्हें नौकरी दिलवा कर रहूंगी। आखिर तुम बीए पास हो। बीए कर लिया था ना तुमने? जी हाँ, कर लिया था। इतने में टेलीफोन की घंटी बजी। मेरा दिल थोड़ा सा तेज होकर धड़का। आखिर ये पंजाब डीआईजी या खुदा जाने आईजी पुलिस की कोठी थी, जहाँ पुलिस कभी फोन आ सकता था। हरपाल कौर ने फोन उठाया। मैं उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसने लाइन पर जो दूसरा शख्स था उससे कहा, सरदार जी तो अंबाले में ही है। हाँ क्या, अंबाले में नहीं है? तो फिर दिल्ली फोन करके पता कर लो, यहाँ वो 3 दिन से नहीं आए। उसने फोन रख दिया और जो कोई भी फोन पर बात कर रहा था उसको पंजाबी में छोटी सी गाली देकर कहने लगी, बुढ़ा खूसट सरदार नई नई तवायफों से ऐश करता फिरता है और ये पुलिस उसकी तलाश में इधर उधर फोन करते रहते हैं। मैं मालूम करना चाहता था कि टेलीफोन पर क्या बात हो रही थी। मैंने पूछा, क्या कोई खास बात थी? हरपाल कौर के खिजाब वाले काले स्याह बाल शानों पर खुले थे। वो उन्हें पीछे करके बोली, ये सिटी स्टेशन का एसएचओ गुरमंदर सिंह था। कह रहा था कि अमृतसर जेल से पाकिस्तानी जासूस फरार हो गया है। इस सिलसिले में सरदार जी से कोई ऑर्डर लेना है। मैंने कहा, मुझे क्या पता बुढ़ा किस तवाइफ के कोठे पर है, जाओ जाकर दिल्ली में देखो। और अब उसने कपूरथले में किसी तवाइफ से याराना लगा लिया है। मेरी तरफ से जो मर्जी करे, मुझे हर माह किस्त मिल जाती है। मुझे तो ये सरदार वैसे भी जहर लगता है। हरपाल कौर सामने वाले सोफे से उठकर मेरे पास आ गई। उसकी साड़ी और ब्लाउज में से खुशबुएं उठ रही थीं। मैं ये खबर सुनकर बेहद मोहतात हो गया था कि जालिंधर पुलिस को न सिर्फ मेरे फरार की इत्तला मिल चुकी थी, बल्कि यहाँ की पुलिस मेरी तलाश में सरगर्म हो गई थी। सिर्फ एक बचत थी कि मैं आईजी पुलिस की कोठी में बैठा हुआ था।
जहां मुझ पर इतनी आसानी से हाथ नहीं डाला जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि मेरी फोटो अमृतसर पुलिस के पास थी और वहां से यकीनन जालंधर सिटी पुलिस स्टेशन भी पहुंच गई होगी। मुझे ये भी डर लग रहा था कि अगर पुलिस ने अखबार में मेरी तस्वीर छपवा दी तो मैं हरपाल कौर की कोठी में ही पकड़ लिया जाऊंगा। लेकिन खुदा का शुक्र था कि जालंधर पुलिस ने अखबार में मेरी खबर ही दी थी, मेरी तस्वीर नहीं छपी थी। हो सकता है आज पुलिस के पास मेरी तस्वीर न पहुंची हो, कल तक पहुंच जाए। इस एतबार से मैं ज्यादा देर हरपाल कौर के पास नहीं ठहर सकता था। ज्यादा से ज्यादा मैं एक रात वहां बसर कर सकता था। मुझे अगले रोज वहां से हर सूरत में दिल्ली की तरफ रवाना हो जाना चाहिए था, और जाना भी इस तरह था कि मैं रास्ते में पुलिस की नाकाबंदी और चेकिंग से महफूज रह सकूं। इस सिलसिले में हरपाल कौर मेरी मदद कर सकती थी। मैं इसीलिए उसके पास आ गया था। हरपाल कौर चाय पीने के बाद कहने लगी, चलो मेरे साथ शॉपिंग सेंटर चलो, अपनी पसंद की रेडीमेड कपड़े खरीद लो। मैं वहां से एक कदम बाहर नहीं निकालना चाहता था। मैंने कहा, नहीं नहीं हरपाल जी, इसकी कोई जरूरत नहीं, यही कपड़े काफी हैं और मुझे कल वापस बंबई भी जाना है। माता जी की समाधि पर फूल चढ़ाने हैं। बंबई से वापस आऊंगा तो फिर नए कपड़े बनवा लूंगा। हरपाल कौर ने मेरी तरफ आंखें झपकाते हुए देखा। अरे तो क्या तुम मेरे पास सिर्फ एक दिन ही ठहरने आए हो? नहीं जगदीश जी, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी। उसने अपनी आदत के मुताबिक अपना बाजू मेरी गर्दन में डाल दिया और प्यार से बोली, इतने दिनों बाद मिले हो, मैं तो तुम्हें बड़ा याद किया करती थी। अच्छा बताओ, क्या तुमने मुझे कभी याद किया? मैं उस वक्त इस किस्म की बातों के मूड में नहीं था। उस औरत को पता ही नहीं था कि मैं ही वो आदमी हूँ जो अमृतसर जेल से फरार हुआ हूँ, जिसने एक खून भी किया है और जिस पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम है। मगर मजबूरी थी, मुझे उससे प्यार भरी बातें करनी पड़ी। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि वाकई झूठी मोहब्बत का ड्रामा करना बहुत बड़ा सब्र तलब काम है। मैंने भी बादल नखास्ता अपना बाजू उसकी गर्दन में हमायल कर दिया। वो बड़ी खुश हुई। मैंने कहा, हरपाल जी, मैं चाहे जितने भी कष्ट उठाता रहूं, पर वाह गुरु गवाह है कि मैंने आपको बड़ा याद किया है। मुझे उसके मुंह से शराब की हल्की सी बू आई। मैंने पूछा, क्या तुमने दिन के वक्त भी पीनी शुरू कर दी है? वो दोबारा मेरे करीब आकर बोली, यूं ही अस्पताल जाते वक्त स्कॉच का एक हल्का सा पैग लगा लिया था। फिर उसने अपना बाजू मेरी गर्दन से निकाल लिया और उदास होकर कहने लगी, मुझे अपनी माता जी की बड़ी फिक्र है। तुम नहीं जानते, मेरी माता जी ने मुझे मुसीबतें झेल कर पाला है। और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। मुझ पर लाजिम था कि मैं उसके आंसू पोंछूं। मैंने उसकी साड़ी के पल्लू से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, जी हल्का न करो हरपाल जी, वाहे गुरु माता जी को अच्छा कर देगा। उसने बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे देखा और कहा, अगर तुम बाहर नहीं जाना चाहते तो तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पतलून कमीज खरीद कर ले आती हूँ, मुझे तुम्हारे साइज का पता है। मैं उसे रोकता ही रहा मगर वो ना मानी और गाड़ी लेकर शहर की तरफ चल दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।